اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل عاشورہ کا ڈھل جانا، صغرا کا وہ مر جانا، اصغر تیرے سینے میں برچھی کا اتر جانا۔ جن کے گھر میں لاشیں پڑے ہوں، ان کے گھر کی کیفیتیں، ان کے درد کی کیفیتیں، ان کی زندگی کے اندر کے سوز و ساز کون جان سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے بہت محبت کی اور ایک پیغام دیا، خیال کرنا، بیٹیوں کو اپنے حق سے محروم نہ کرنا، اور شادی کے بعد بھی بیٹیوں کو محبت دیتے رہنا، دیتے رہنا، دیتے رہنا۔ شادی کے بعد ایک دلیل ہے میرے آپ کے لیے، اور یہ سارا کنبہ اور سارا قافلہ جو کربلا میں شہید ہوا، میرے حضور کا گھرانہ تھا، حضور کی آل تھی۔ ایک غم کی کیفیت اور درد کی کیفیت، اور غم اور درد میں ڈوب جانا، یہ بھی ان آل کی محبت کا حصہ ہے۔ اور ان کی زندگی کے ایک ایک گوشے کو چننا، ایک ایک لمحے کو لینا، اور ان کو ایک ایک چیز کو کاپی کرنا، اس کو مثال بنانا۔ وہ کھاتے کیسے تھے، وہ اٹھتے کیسے تھے، وہ بیٹھتے کیسے تھے، ان کا لباس کیسا تھا، ان کا چہرہ کیسا تھا، ان کے دل کی کیفیتیں کیسی تھیں، ان کے اندر مزاج کیسا تھا، ان کی سخاوت کیسی تھی، اور وہ سخیوں کے سخی اور شہنشاہوں کے شہنشاہ۔ ایک ایک چیز پہ نظر رکھنا یہ آل کی محبت کا حصہ ہے، اور یہ محمد اور آل محمد کے ساتھ محبت کا ایک لازم جز ہے۔ اور دنیا کا بہترین مومن وہ ہے، مسلمان وہ ہے، جو ان ہستیوں کو محبت دے، ان کا احترام کرے، ان کا اکرام کرے، اور ان کی زندگی کے خوبصورت پہلو چنے کہ ان کی زندگی میں کون کون سے پہلو ایسے ہیں جن کو ہم نے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ وہ سخاوت کا پہلو ہے، وہ اخلاق کا پہلو ہے۔ آئے ہم سب سے پہلا ایک پہلو سنتے ہیں اور چنتے ہیں۔ میرے آقا کا فرمان ہے، حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، جو عاشورہ کے دن 10 محرم کے دن اپنے گھر والوں کے لیے روزی فراخ کرے گا، اللہ سارا سال کی روزی کا انتظام بھی کرے گا، فراغ بھی کرے گا۔ حدیث کا مفہوم ہے۔ آپ یہاں ہیں، یا جہاں میری آواز، اس بچے کو سنبھالو، جہاں میری آواز پہنچی ہے، جہاں میری آواز پہنچی ہے، وہ حضرات اپنے گھر کی روزی کو، گھر والوں کی روزی کی فراغی کی نیت کر لیں۔ آپ نیت کر لیں، اور جہاں میری آواز جا رہی وہ اس کی ترتیب بنا لیں۔ اور روزی کی فراغت سے مراد جتنا حسب توفیق ہے اتنا میں گھر والوں پہ خرچ کروں گا۔ کتنے لوگ میں نے ایسے دیکھے باہر پہ خرچ کرنے میں ان کی جیب بہت زیادہ، گھر پہ خرچ کرنے میں نہایت بخیل ہوتے ہیں۔ ایک خاتون بوڑھی میرے پاس آتی تھی، میرا شوہر کا نام یہ ہے، مجھے آج بھی شوہر کا نام نہیں بھولا۔ کیا کرتا ہے؟ آلو لے آتا ہے، کہہ رہے آج کا ہفتہ پورا آلو کھائیں گے۔ آلو بھی وہ لائے گا جو سبزی شام کو بچی ہوئی گرنے کے قابل ہے، گرانے پھینکنے کے قابل ہے۔ اور پھر
दूसरे हफ्ते में कद्दू लाएगा, कहने लगे आज का पूरा हफ्ता कद्दू खाएंगे। तीसरे हफ्ते में बैगन लाएगा सड़े हुए, और कहा उसके पास माल है, दौलत है, बैंक में रखा हुआ है। मैंने सारी जिंदगी फक्र में गुजारी है, सारी जिंदगी रोते गुजारी है, और सारी जिंदगी गुर्बत में। क्या मेरे शोहर में कभी एहसास पैदा होगा कि मुझे ऐसे पैसे भी कभी दे दे जो इसका पूछना बाद में ना हो? कोई ऐसे पैसे दे दे जिसका बाद में हिसाब ना हो कि बता तुझे मैंने फलां पैसे दिए थे, कहां खर्च किए। कुछ रकम ऐसी भी बीवी को देनी चाहिए जिसका बाद में हिसाब किताब ना हो, और यह ना हो कि अब तूने वो दी है उसी में से खर्च कर। और वो खातून फिर एक दफा उसके खानदान के दूसरे अफराद आए तो कहने लगे वो फौत हो गई है। और मैंने कहा उसकी जिंदगी में, कहा कि उसकी जिंदगी में कफन भी उसके शोहर ने नहीं दिया, कफन भी किसी और ने दिया। ये पैगाम है आशूरा का। आज के दिन घर वालों पे रोजी फराख करने से मुराद ये पैगाम है, पूरी दुनिया को बताना है मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि लोगों ख्याल करना, दोस्तों के लिए अगर सखी हो तो घर वालों के लिए बखील ना बनना। और हदीस में आता है अलामात क़यामत में ये एक अलामत है, अलामात क़यामत में ये एक अलामत है, मफहूम है कि गैरों के साथ अच्छा बर्ताव किया जाएगा और अपनों के साथ बुरा बर्ताव किया जाएगा और उन्हें छोड़ दिया जाएगा। और खास तौर पे मैंने देखा है जो बंदा शोहरत याफ्ता हो जाता है, मालदार हो जाता है, किसी ओहदे में मकाम पे चला जाता है, वो अपने गरीब रिश्तेदारों को भूल जाता है और भूल जाता है और भूल जाता है। तो मेरी आपसे दरखास्त है कि आज के दिन आप हजरात हस्बे तौफीक कुछ रकम की आप नियत कर लें। चूंकि आप यहां हैं, चूंकि आप यहां हैं और आप हजरात जो है वो घर नहीं जा सकते, नियत करने से वो सारा सवाब मिलेगा, फिर उसको आप खर्च कर लेंगे, उसको खर्च कर लेंगे। ये एक पहला नूरी अमल है, एक पहला मोती है आशूरा का, जिसकी हम आज नियत कर लें। मेरे आका के फरमान को सामने रखें, मेरे हुजूर के फरमान को सामने रखें। मुझे एक साहब कहने लगे सिंध में, कहने लगे कि सुबह सुबह जाती थी दो बेटियां, ढल गई थी उम्र उन बिचारियों की, और बाप की कब्र पे जाके लेपती थी और फिर लानतें दे के आ जाती थी। लोगों ने लान तान की, क्या करती हो? कहा हमारा मामला है, हमारा बाप है, तुम्हें क्या है, हम जो करें, हमारा मामला है, हमारा बाप है, हम जो करें हमारी मर्जी है, हमारी मर्जी है। बाद में पता चला कि बाप ने दो वजह से शादियां ना की बेटियों की, हर रिश्ते को ठुकराना, हर रिश्ते पे एतराज। एक तो खिदमत कौन करेगा, एक जायदाद चली जाएगी। और बेटियां आखिरी वक्त में, जब बाप का वक्त आखिर आया तो कहने लगा कि अब्बा सारी उम्र तेरी खिदमत की है, अब आखिरी वक्त में एक दुआ कराते हैं, हमने दुआ करनी है, अब्बा तूने आमीन कहना है। और बेटियों ने कहा बेटियां बिल्कुल मैं आमीन कहूंगा। उन्होंने दुआ की कि या अल्लाह हमारे बाप को जहन्नम में भेज दे और हमारे बाप को अजाब दे। इन्होंने हमें सारी जिंदगी तड़पाया और बाप ने आमीन कही, मर गया। अब होता यह है कि रात को उसकी कब्र से आग निकलती है, कब्र काली होती है। अब लोगों को तो आखिर दिखाना है, सुबह जाती हैं, पानी लेके मिट्टी लेके उसकी कब्र को लेप देती हैं। वो आग की स्याही खत्म होने के बाद कुल कलमा आमाल तस्बीहात पढ़ के नहीं, लानतें भेज के आती हैं। सच्चा वाकया है सिंध का। आज आशूरा के दिन मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने घर वालों पे रिस्क कुशादा करें। और एक और अजीब बात बताऊं, अल्लाह अकबर,
हजरत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन मेरे हुजूर की वो बीवी थी जो हिकमत, बसीरत और दानाई, अक्ल, कमाल, अल्लाह अकबर, बहुत ज्यादा। वो क्या करती थी? वह मदीना की औरतों से एक बात करती थी, कहती थी देखो आशूरा के दिन तुम्हारे शोहरों ने खवातीन से कहती तुम पे रिस्क की कुशादी डालनी है, करनी है, या लाके देने हैं या पैसे देने हैं। अब ख्याल करना तुमने फजूल खर्ची नहीं करनी, वरना ये रिस्क आइंदा के लिए तुमसे छिन जाएगा और तुम्हारी जरूरियात पूरी नहीं होंगी। जिस मुआशरे में भी नेमतों की बेकदरी हो, फजूल खर्ची की शक्ल में, ख्वाहिशात के बढ़ने की शक्ल में, चीजों को ख्वाहिशात से आगे ले जाने की सूरत में, उस मुआशरे में कहत आता है, जैसे इस वक्त हमारे मुल्क में कहत आया है, बिजली को रोते हैं, पानी को रोते हैं, आटे को रोते हैं, चीनी को रोते हैं, फिर हम जालिम भी तो हैं, फिर हम बादशाहों को गालियां देते हैं, हालांकि कसूरवार तो हम हैं। मुझे बताएं, कोई बादशाह चाहेगा महंगाई हो? उसे पता है अगर महंगाई होगी मेरा तख्त हिल जाएगा, महंगाई अवाम बिफर जाएंगे। कोई बादशाह नहीं चाहेगा। ये महंगाई की लिस्टें सुबह ऊपर से तय होती हैं। हदीस में आता है, मेरे आका का फरमान है, एक फरिश्ता सुबह आवाज देता है, आज इस चीज का ये रेट है, आज इस चीज का ये रेट है। ऐ जमीन वालों, अर्श वाले ने तुम्हारे लिए महंगाइयां और कहत कर दिया है। और क्यों जैसे तुम्हारे अमाल ऊपर जाएंगे वैसे अहवाल ऊपर से फैसले होंगे। आप मुट्ठी भर कर ऊपर पत्थर फेंकें, फिर ऊपर से फूल गिरने की तवक्को रखें, मुमकिन है? आप जिस जोर से मुट्ठी भर के ऊपर पत्थर फेंकेंगे तो ऊपर से पत्थर ही गिरेंगे, ऊपर से पत्थर ही गिरेंगे। जाग रहे, मेरी तरफ देखते रहिए। तो ये एक सबक है आशूरा का, अहम सबक है कि अपने घर वालों के साथ जिंदगी का निजाम कैसे चलाना है। मुझे एक साहब फख्र से कहने लगे, मैं जब जाता हूं बच्चे बिल्कुल इंसान के बच्चे बन जाते हैं, कोई शरारतें नहीं करते, दुबक जाते हैं, ये चीज हो जाती है। मैंने कहा यह तो बड़ी खतरे की बात है कि निजी जाब्ता होना चाहिए। मुझसे कहने लगे, मैंने कहा ये जो कुत्ता बावला होता है उसको देख के लोग खड़े हो जाते हैं, एक तरफ भाग दौड़ करना शुरू कर देते हैं, फिर उसकी इज्जत में ऐसा किया जाता है। उन्हें कहा काट ना ले बावले कुत्ते को, एक तरफ तो होते इसलिए हैं कि काट ना ले। तो आशूरा का आज का ये सबक, ये बहुत अहम सबक है, बहुत अहम सबक है। अपने घर वालों के साथ रिस्क की कुशादगी, रिस्क की वुसअत, असल में एक पैगाम दिया जा रहा है। ये सारा असल में ये पैगाम दिया जा रहा है कि रिस्क की कुशादगी और रिस्क की वुसअत से मुराद तुमने जिंदगी में क्या हासिल करना है, और फिर आशूरा से ये जिंदगी का सफर करना है, घर वालों के साथ मोहब्बत, प्यार, इकराम, एहतराम का, नरमी का, और ये सारा साल चलना है। फिर आइंदा साल आशूरा में 10 मुहर्रम में इसकी याद दहानी फिर कराई जाती है ताकि ये सबक ना भूले, ताकि ये सबक ना भूले। दूसरा मोती आशूरा का, आशूरा के दिन कब्रों पे जाया जाता है, उन पे कुछ छड़ियां, पत्ते और कोई दाने डाले जाते हैं। हाँ, नहीं, ये तो रोज जाया जाता है, या कम से कम हफ्ते में एक दफा जाया जाता है। मैं हर हफ्ते, हर जुमेरात को एक पैगाम आपको दिया करता हूं, अपने बड़ों को ना भूलना, अपने प्यारों को ना भूलना, अपनी कब्रों को ना भूलना, अपने मरहूमीन को ना भूलना, ना भूल। हमारे एक जानने वाले आए, कहने लगे मेरी दादी की कब्र गुम हो गई। हालांकि कब्र उनकी, घर उनका बिल्कुल सामने कब्रिस्तान के, इसलिए गुम हो गई इसलिए
कि उनकी दादी के यहां कोई जाए, जाना आना ही नहीं है। गोरकन ऐसी कब्रों पे नजर रखते हैं उसकी जगह। और यहां लाहौर में एक जगह है गड़ी शाहू, वहां के एक साहब मेरे पास आए, उन्होंने पूरे कागजात तैयार किए हुए थे कि मेरी वालदा की कब्र पे आके किसी और ने कब्र बना दी, मैं उन पे मुकदमा करने लगा हूं। मैंने कहा एक तरफ कागज रख, जा मस्जिद में कहीं या किसी कोने में जाके तौबा कर कि तू अम्मा के पास जाता नहीं था। जिस कब्र पे आना जाना ना हो वो कब्र मिटा दी जाती है। मैं आशूरा का आज दूसरा मोती आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। अपने प्यारों को अपनी कब्रों को साल का इंतजारी ना बनाएं, साल इंतजार करते रहे। हाय अबू हुरैरा की एक रिवायत सुनाऊं, और मैं हजूर ने जब सुनाई हम भी रोए, सारा मजमा रोया, हम भी रोए, सारा मजमा रोया, हजूर भी रोए। और ये रिवायत सुनाई, फरमाया हर शबे जुमा पे, जुमेरात की शाम जिसकी अगले जुमा होता है, हर शबे जुमा में रूहें दरवाजे पे आती हैं और आके दरवाजा खटखटाती हैं। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, दरवाजा खटखटाती हैं और दरवाजा खटखटाने के बाद कहती हैं, घर वालों हम इस घर में रहते थे, ये घर हमारा था, हमें इस घर से कुछ चाहिए, कोई सदका, कोई खैरात, कोई दरूद, कोई आमाल, कोई हमारे लिए दुआ। फरमाया वो फजर तक आवाजें देती रहती हैं रूहें, आवाजें देती रहती हैं रूहें, आवाजें देती रहती हैं रूहें, और फजर के बाद फिर थकी हारी कब्रिस्तान में जाती हैं और कब्रिस्तान वाले मुंतजर होते हैं, कुछ लाएंगे तो हमें भी देंगे। पूछा क्या लाए? रो के कहते हैं हमारे वारिस हमें भूल गए, वो ख्वाबे खरगोश में सोते रहे, हम चीखो पुकार करके आ गए, चलो आइंदा जुमेरात जाएंगे। फिर आइंदा जुमेरात जाते हैं और जिंदगी ऐसे गुजर जाती है और घर वालों को कोई ख्याल नहीं होता। क्या प्यारों को साल का मुकय्यद बना दिया? क्या प्यारों को हमने साल का साथी बनाया, जो जिंदगी के साथी थे, जो जिंदगी के साथी थे। अम्मा रहमतुल्लाह अलैह फरमाती हैं, तारिक तो पेट में था, मैं रात को सख्त सर्दी में, पोह की सर्दी, दिसंबर की सर्दी, कंबले लपेट के और सहन में बैठती थी और सारी सारी रात दुआ मांगती थी। उन प्यारों को साल का साथी बना दिया, उन प्यारों को साल का मुसाफिर बना दिया, उन प्यारों को साल का मुंतजिर बना दिया। इसी किताब में लिखा है, जिसका मैंने नाम लिया, एक साहब रोजाना अपनी वालदा के पास जाते थे। एक दफा ख्वाब में आई, बेटा आते ही कुरान न पढ़ा कर, तस्बीह न पढ़ा कर, कलमा जिक्र आमाल कुल्हु वल्लाह जो पढ़ता है ना पढ़ा कर, कुछ देर बैठ जाया कर, मैं तुझे देख तो लिया करूं। क्यों? मैं तुझे देख तो लिया करूं। क्यों? तू आमाल करता है, तू नूर में ढक जाता है, मैं तुझे देख नहीं पाती। तू अमाल करता है, तू नूर में ढक जाता है, मैं तुझे देख नहीं पाती। कुछ देर न पढ़ा कर, मैं तुझे देखूं, फिर बैठ के पढ़ा कर। यह आशूरा का दूसरा पैगाम है, यह आशूरा का दूसरा पैगाम। और आशूरा का तीसरा पैगाम, आशूरा का तीसरा पैगाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन शहनशाह विलायत, शहनशाह अहलुल बैत मैं क्या करते थे? एक अमल करते थे, लेकिन आशूरा में उस अमल की ताकत को बढ़ा देते थे। दुआ और इबादत आशूरा में उसको बढ़ा देते थे, दुआ और इबादत। और फरमाया एक शख्स ने उनके सामने शुहदाए करबला की इज्जत और इकराम और तारीफ की, और कातलाने करबला को बहुत लानत और बुरा भला कहा। आपने उसे रोक दिया, फरमाया हम आले रसूल लानत नहीं करते,
हम आले रसूल लानत नहीं करते, हम तो दुआएं देने वाले अपने दुश्मनों के लिए भी। एक और अमल करते थे, एक तो दुआ और इबादत बढ़ा देते थे, एक और अमल करते थे, गरीबों को तकसीम, गरीबों को तलाश करते थे, जरूरतमंदों को तलाश करते थे, गरीबों और जरूरतमंदों को, ऐसे गरीब और जरूरतमंद, ऐसे गरीब और जरूरतमंद जो सवाल नहीं कर सकते। परसों मुझे एक जवान मिला, एक कोई पाकिस्तान की बहुत बड़ी कंपनी है, उनकी करोड़ों ज़कात निकलती है, तो वो जो दरखास्त देते थे उनको देते थे। फिर उन्हें शक गुजरा कि लोग ऐसे भी हैं जो कि गैर मुस्तहिक हैं, पेशावर हैं। उन्होंने उस जवान को कहा कि ये हमारी केस है, इनको हम पैसे लगाए हुए हैं बीमारी के नाम पे, घर की गुर्बत के नाम पे, तालीम के नाम पे, फलां नाम पे, इनकी तहकीक कर। तो कहा कि जब मैं तहकीक करने गया तो उन्होंने पूछा कि कहां से फोन किया, कहां से फोन आया? तो मैंने उनसे पूछा पहचाने कहां से आया? उन्होंने एक का नाम लिया, दो का, तीन का, चार का, पांच का, क्योंकि उनकी जिंदगी इसी में गुजर रही थी। कहा जब मैं गया हूं उनके घर में एसी, गाड़ियां, निजाम है, लेकिन उन्होंने हर कंपनी को, हर मालदार को दरखास्त दी हुई है और उनसे माल आ रहा है और उस माल को अय्याशियों और गैर शरई चीजों पे लगा रहे हैं। फिर उसने अजीब कोई वाक्य सुना, मैं तो परेशान हो गया। कहने लगा डॉक्टरों के साथ है, तू मुझे लिख के देगा नुस्खा कि इसको 5 लाख का इलाज की अच्छा जरूरत है, वरना ये मर जाएगा, आधा तेरा आधा मेरा। फिर उसने अगली उससे भी खतरनाक बताई, घर के जो किराएदार हैं उनसे तरतीब तय है कि मेरे 7 महीने का किराया मैंने देना है, किराएदार मुझे निकालता है। मैं घर पहुंचा तहकीक के लिए तो किराएदार ऊपर रहता था या ये नीचे रहता था या ऊपर। उसने कहा जी 7 माह का किराया इसने मैंने देना है। किराएदार से भी तरतीब तय थी, जो इधर से मिलेगा तेरा भी हिस्सा उसी में होगा। जब अल्लाह से मांगना सीखा नहीं तो फिर मखलूक से मांगने के सीखने के 70 रास्ते तलाश करेंगे। मैं कराची में था तो हमारा एक दोस्त है मजाहिया, मुझे कहने लगा मांग के दिखाऊं, ठहरो यहां। उसने ना कमीज में से अपनी बाजू निकाली, पांव टेढ़ा किया, मुंह टेढ़ा किया, बालों को खास तौर पे ऐसे किया, कुछ तरतीब बना के ऐसे करते करते ऐसे गाड़ी में ना हाथ ऐसे करके गया, बहुत सारे नोट इकट्ठे करके ला के कहने लगा आओ खाए पिए। मैं बोला तू खा, ये रिस्क हमें ना खिला। इमाम ज़ैनुल आबिदीन क्या करते थे? गरीबों को तलाश करते थे, जरूरतमंदों को तलाश करते थे, जो अयालदार हैं, जो गरीब हैं, जो सफेद पोश हैं, जो अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते, उनको तलाश करते थे, उनको तलाश करते थे। तो ये आशूरा का तीसरा मोती है। आज हमारी तीसरी महफिल है, इंशाअल्लाह शाम मगरिब के बाद आखिरी और चौथी महफिल होगी। हमारे पैकेज भी हैं आज जो आपसे वादे हैं, मगरिब के बाद भी पैकेज हैं जो आपसे वादे हैं, और 7 मोती भी हैं। और आज हमने आले रसूल के मुश्किल कुशा अमल और होवल बाकी की उधार भी चुकानी है। याद है होवल बाकी हैं? आपने कहीं लिखा याद दहानी के तौर पे? नहीं लिखा, माशाअल्लाह। होवल बाकी की भी उधार चुकानी है कि हमने होवल बाकी, आपने रात पढ़ा होगा ना, पढ़ा होगा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह पढ़ा होगा। चौथा मोती जो आशूरा का है वो एक ये है कि हम सिर्फ नियत कर लें, हम हर महीने आले रसूल की किसी एक सुन्नत को अपनाएंगे। हर महीने, हर रोज हो जाए, हर हफ्ते हो जाए, हर महीने आले रसूल की किसी एक सुन्नत को अपनाएंगे। उनका चेहरा कैसा था, एक उनका लिबास कैसा था, उनका हया कैसा था, उनका पर्दा कैसा था, उनका सब्र कैसा था, उनका हक कैसा था, वो नापतोल कैसे करते थे, वो जुबान में सच्चाई का अख्तियार कैसे करते थे, वो जिंदगी में सच और जिंदगी में हक को कैसे बोलते थे, और वो क्या जिंदगी थी।
ایک कोई ऐसी अदा है अपनी जिंदगी में हमने अख्तियार करनी है, और एक ऐसी अदा है उसको जिंदगी में हमने लाना है, ये फैसला कर ले। कितने मोती हो गए? 4 मोती। अब हम हुवल बाकी पे बात करने लगे हैं। जो आपने रात पढ़ी हुवल बाकी, हुवल बाकी ये अल्लाह के 2 नाम है, एक नाम नहीं है। हु अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, ये अल्लाह का नाम है। हु। आपने माशाल्लाह आज नात भी सुनी, आले रसूल की शान भी सुनी, मनकबत भी सुनी। आज मैंने अपने दर्स से पहले, अपनी महफिल से पहले यह सब कुछ सुनवा दिया। अब मेरी थोड़ी सी बात को आप तवज्जो से सुनेंगे। हम दरमियान में दरूद पाक पढ़ेंगे। मनकबत इसलिए हमने पहले सुन ली, तो फिर दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अल्लाह के 2 नाम है, हु और बाकी। अल बाकियो, हु, ये अल्लाह के 2 नाम हैं। हु। इन अल्लाह के 2 नामों की तासीर पहले सुन ले, और फिर एक वाकया भी सुन ले, और आपको एहसास होगा आपने रात पढ़ा और उसका क्या कमाल पाया। उसका आले बैत का एक काफिला मदीना से बगदाद जा रहा था। आले रसूल थे, मस्तूरात भी थी, मर्द भी थे। अभी वो काफिला 3 दिन ही चला था। दिनों का सफर है, दिन का सफर तो नहीं, घंटे का नहीं। अभी वो काफिला 3 दिन ही चला था, तो रास्ते में एक चरवाहा मिला। एक जंगल था, उसमें एक चरवाहा था। वो चरवाहा मिला। काफिले ने कयाम किया, थके हुए थे, शाम का वक्त था। दिन ढलने से पहले काफिले ने एक अच्छी जगह को लिया, कयाम किया। चरवाहा ने भी आके बकरियों को वहां ठहराया और इनके साथ आके कहने लगा, आप कहां के लोग हैं? कहा मदीना के हैं। किस कबीले के हैं? कहा बनु हाशिम से हैं। खड़ा हो गया, आप तो आले रसूल हैं, मेरी सारी बकरियों का दूध आपके लिए। तो इन्होंने पूछा, ये बकरी तेरी अपनी है? कहा आधी मेरी है, आधी किसी और की है। कहा जो आधी तेरी है वो ले आ, वो तेरी मिल्क है, हम उसका दूध पिएंगे, हम उसका दूध पिएंगे। तो वो ले आया। एक बकरी लाता था, बर्तन सामने रखता था और कुछ पढ़ता था। देखने वाला कहता था इसके थनों में कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं होता था। पढ़ता था, थोड़ी ही देर के बाद थनों को दबाता था, जैसे से गुब्बारे को दबाएं और गुब्बारा भर जाता है। ये मेरी तरफ से आपको इजाफा है बात समझाने के लिए। कहा कि थन भर जाता था, और जब थन भर जाता था दूध मिलता था, और बहुत मिलता था। और कहा सब ने पिया, फिर अगली बकरी, फिर अगली बकरी, फिर। लेकिन हर बकरी की सूरत हाल ऐसी थी, उनमें चंद बकरियां थीं जिनमें दूध वाकई थनों में भरा हुआ था, चंद बकरियां थीं, और उसके अलावा बकरियों का दूध नहीं था। लेकिन वो जिस बकरी को भी उसने हाथ रखा तो वो बकरी का दूध उसे मिलता था। जब इन्होंने दूध पी लिया, सब कुछ पी लिया, और दूध से ये फरागत सैर हो गए, तो उस चरवाहे को बुलाया। उससे पूछा कि चरवाहे से, तू कौन है? तू कौन है? और ये क्या करामत है? इस करामत का कोई कमाल बता। ये क्या करामत है? तो कौन है? ये क्या करामत है? और इस करामत का कोई कमाल बता। तो अजीब बात कहने लगा। उसने कहा कि इस करामत का कमाल यह है, मैं बहुत अरसा मक्का में रहा हूं और एक गुलाम की हैसियत से रहा हूं। मक्का में रहा हूं
और एक गुलाम की हैसियत से रहा, और मैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का गुलाम था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब उठते थे और बैठते थे, या उनको कोई मुसीबत और परेशानी आती थी, या उनको किसी चीज की तलब होती थी, तड़प होती थी, या उनको कुछ चीज चाहिए होती थी, तो फरमाया मुट्ठी बंद करके, आंखें बंद करके बैठ जाते थे और कुछ पढ़ना शुरू हो जाते थे। पढ़ते पढ़ते वो चीज उसी वक्त पूरी हो जाती थी, दोपहर को हो जाती थी, शाम को हो जाती थी, वरना कुछ अरसे, कुछ दिनों के बाद कहा जो चीज भी होती थी वो मांगते थे, हो जाती। मैं गुलाम था, मैं कहता था आका फलां चीज की जरूरत है, अच्छा नहीं है, कहा नहीं, कहा हो जाएगी। और फिर मैं मुट्ठी बंद करके, दाएं मुट्ठी बंद करके, सर झुका के अल्लाह की तरफ ध्यान करके कुछ पढ़ते थे। कहा कि उनके मैंने कई करिश्मे देखे, कई कमालात देखे, कई बरकत देखी, और मैं हैरान हुआ ये क्या है। कहा एक दफा मैंने उनसे पूछा, उनकी बदनी खिदमत कर रहा था, दबा रहा था, तो मैंने पूछा, मैंने कहा आका अगर आप मुनासिब समझे उस गुलाम को ये भी बता दें, गुलाम को ये बता दें। कहा कि ये उस वक्त की बात है, फिर थोड़े ही अरसे में वो मदीना हिजरत कर गए और मैं हिजरत ना कर सका, वो मदीना हिजरत कर गए। तो फरमाने लगे मैंने जिंदगी में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ जिंदगी गुजारी, सिद्दीक़ अकबर के साथ जिंदगी गुजारी है। कहा कि मैंने सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी में एक चीज देखी है, और वहां से ये मैंने पाई है, जब भी उन्हें कोई जरूरत होती है वो हुवल बाकी पढ़ते हैं, डूब के पढ़ते हैं। और कहा दाएं हाथ की मुट्ठी आप क्यों बंद करते हैं? कहा कि अल्लाह से कहता हूं अल्लाह ये हाथ खाली है, बंद करके बैठा हूं, जब भरेगा तो खुद खुल जाएगा। खाली हाथ तो बंद होता है ना, जब भरता है तो बंदा मुट्ठी नहीं बंद कर सकता। मुट्ठी बंद कर सकता है भरी हुई, तो ये अल्लाह खाली है, जब भरेगा तो ये हाथ भर जाएगा। अल्लाह इसको भर दे।